تشریف رکھیں. کیوں جی آج کل یہ چل رہی ہے فہرست ابھی ختم نہیں نا ہوئی؟ السلام علیکم. آپریشن کا کی ضرورت کی دوائیں پڑھ رہے تھے نا ہم. جی ٹھیک ہے. یہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں آرنیکا کا ذکر کیا تھا میں نے. ہم تو اس کو اونچی طاقت میں دیتے رہے ہیں, بہت فائدہ دیکھا ہے. آرنیکا 1000 میں یا 200 میں. اس ڈاکٹر نے 30 تجویز کی ہوئی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کئی دفعہ میں نے بھی استعمال کی. ویکسینیشن نہیں, ویریکوس وینز آرنیکا لکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کو میں نے کبھی بھی ویریکوس وین میں مفید نہیں دیکھا. ویریکوس وین کے آپریشن کے لیے ہو سکتا ہے. ویریکوس وینز میں اور بہت سی دوائیں ہیں جو بہت اچھا اثر رکھتی ہیں. ایک ایسکولس بھی اس میں سے ہے, پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تفصیلی. آرنیکا کو اثر کرنا چاہیے مگر اثر کرتا نہیں خاص کوئی. اپینڈکس کے لیے آرنیکا, بلکہ اپینڈکس کے آپریشن کے بعد صرف آرنیکا ہی نہیں بلکہ آرنیکا اور آئرس 10X یہ ملا کے پھر برائونیا بھی 200 ساتھ ملا دیں تو اور بھی اچھا نسخہ بن جاتا ہے. پہلے بھی اور اس کے دوران بھی, آپریشن کے بعد بھی, ہر طرح سے یہ مفید نسخہ ہے. گال بلیڈر کے لیے بھی اس نے تو آرنیکا ہی ریپیٹ کیا ہر جگہ. آنکھ کے لیے بھی آرنیکا. جی ہاں سب جگہ جہاں بھی ٹراما آرنیکا وہ جنرل ہے, اس لیے اتنی لسٹیں بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر قسم کے آپریشن سے پہلے اور بعد میں آرنیکا دیتے رہو. خام خواہ لسٹ ہی بنائی ہوئی ہے, نمبر بنائے ہوئے اپنے. آرتھوپیڈک آپریشنز کا بھی پھر ذکر کے آرنیکا. ایک صرف چیز ہے جو الگ ہے اور وہ ٹھیک ہے بالکل. کارٹلیج ہوتے ہیں نا جو جس کو مرکری ہڈی کہتے ہیں, ان کے آپریشن وغیرہ کے سلسلے میں آرنیکا کی بجائے روٹا دی ہوئی ہے, بالکل درست ہے. روٹا کارٹلیجز پہ بڑا اچھا اثر کرتی ہے. پیریوسٹیم پہ روٹا کا بہت اچھا اثر ہے. ہڈیوں کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا باریک سی, اس کے اندر نرز بھی ہوتی ہیں اور کئی چیزیں ہوں گی, اس کو پیریوسٹیم کہتے ہیں. اس کے لیے روٹا بہت مفید ہے. آگے ہے میسٹوائڈیکٹمی. یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ میسٹوائڈ گلینڈ کا آپریشن. جی ضرور. ہیمورائڈس کے لیے اس نے اسٹیفی سیگریا دیا ہوا ہے. اور ایسکولس بھی دیا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ دونوں کام کر سکتی ہیں, مگر میرے خیال میں ہیمورائڈز میں آرنیکا بھی شامل کرنا چاہیے آپریشنز کے. اسٹیفی سیگریا
اور ایسکولس کے علاوہ. کان کا صرف یا میسٹرائڈ گلینڈز نہیں ہوتے ساتھ؟ اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیے یہ تازہ جنریشن اور پرانی جنریشن کا فرق. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں ہاں. یہ اوپر حضور یہ جو کان کے ایک خاص حصے کے آپریشن کو میسٹرائڈیکٹمی کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. جزاک سوری اللہ. وہ رائٹ. پر ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا. ہر آپریشن کے لیے وہ آرنے کا چلے گا. صرف یہ ہے کہ ہیمورائڈس کو کان کے آپریشن سے کنفیوز نہ کریں. وہاں اور ہے بواسیر کے آپریشن میں تو یہ جو روٹا اور اسٹیفیسیگریا اور آرنیکا بھی. اور ختنوں کے لیے بھی اسٹیفیسیگریا اور آرنیکا دونوں تجویز کیے ہوئے اس میں. اب بعض خاص دوائیں ہیں جو عموماً استعمال میں نہیں آتی، جو اس نے کہیں کہیں دی ہوئی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں. ان کا استعمال میں نے خود بھی کروا کے دیکھا ہے یہاں اور مفید پایا ہے، لیکن وہ بیچ میں ذکر آئیں گی. عام طور پر تو عام دوائیں ہیں جو خاص حالات میں استعمال کرنے میں اس نے اچھی مفید پائی ہیں. اپینڈیسائٹس کے لیے یہ کہتا ہے کہ 10x، وہی آئرس 10x 30 میں، اور میں نے 200 میں تجربہ کیا ہے، وہ بہت مفید ہے. اس لیے مرضی ہے 30 میں کریں یا 200 میں کریں. پوسٹ آپریٹو تکلیف کے لیے بھی آئرس 10x میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اس نے وہاں آرنیکا دیا ہوا تھا، لیکن بعد میں آئرس 10x بھی ایڈ کر دیا ہے. وہ ویسے ہی ایڈ کریں، وہ بڑی مفید چیز ہے. ایک اور دوائی ہے تھائوسینینیمم. یہ بہت مفید دوا ہے کیونکہ ہر قسم کے آپریشن کے بعد جو دردیں باقی رہ جاتی ہیں ان میں تھائوسینینیمم بہت مفید ہے. اور یہ اندرونی دردوں کے لیے بھی مفید ہے، بیرونی جلدی دردوں کے لیے بھی مفید ہے. کوئی تفریق نہیں کرتی. صرف کٹس کے بعد جو پھر جوڑا جاتا ہے زخموں کو، اس میں باقی رہنے والی دردوں میں مفید ہے. چوٹوں اور اس کا ذکر نہیں ملتا کہ ویسے ہی حادثاتی طور پر کوئی کٹ لگ گیا ہو، مگر آپریشن کے ساتھ تو بہرحال تعلق ہے. ایک ایسے مریض کو یہاں میں نے تھائوسینینیمم، مشکل لفظ ہے، یاد کر لیں. سلیم کے لیے تو مستقل ابتلا ہے یہ. تھائوسینینیمم. کیوں جی سلیم صاحب؟ کیا ہاں جی ٹھیک ہے، تو بڑے یاد ہوگی. ایکسیلنٹ ہے کبھی. تھائوسینینیمم، رائٹ. اس کے اسپیلنگ کیا ہے؟ THIOSINANIMUM. اس کی 200 پوٹینسی مفید رہتی ہے. ڈاکٹر رشید صاحب، آپ نے بھی تجربہ کیا ہے نا اس کے اوپر، کیا دیکھا؟ ایک ہی خوراک کافی کس طاقت میں؟ 200 میں. ٹھیک ہے. ایسما کے اٹیکس میں جو سیدھا لیٹنے سے جس کو آرام آتا ہو، with legs outstretched، اس میں کہتا ہے سورائنم بہت فائدہ دیتی ہے، مگر ایسا مریض میں نے کبھی نہیں دیکھا دمے میں جس کو سیدھا لیٹ کے ٹانگیں پھیلا کے آرام آتا ہو. یہ مریض ڈھونڈنا مشکل ہے. دوائی تو باہر ضرور کام کرتی ہوگی. عام طور پر بیچارے اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، دورے ہوئے ہوتے ہیں، اور لیٹتے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور ٹانگیں سکیڑی ہوتی ہیں انہوں نے.
तो अगर कहीं कोई ऐसा मरीज मिल जाए किस्मत से तो फौरन सुलाइनम दे दें उसको, ठीक है। अगर दिल का एहसास हमेशा रहे कि दिल में कुछ है या दिल की मौजूदगी का एहसास रहे, उसमें एंजाइना बहुत अच्छी है। एंजाइना ना एंजाइना सॉरी, और एंजाइना भी हो तो उसमें ये स्पाइजीलिया बहुत अच्छी है। स्पाइजीलिया एंजाइना के लिए तो जनरल है, लेकिन अगर दिल की मौजूदगी का एहसास कि दिल यहाँ कुछ है चीज़ हर वक्त, उस एहसास में स्पाइजीलिया स्पेसिफिक दवा बन जाती है। पेरिकार्डाइटिस के लिए भी स्पाइजीलिया बहुत अच्छी दवा है। अभी कुछ अर्सा पहले नईम शाह साहब के कोई दोस्त थे, वो हॉस्पिटलाइज हुए क्योंकि उनकी पेरिकार्डियम में काफ़ी इन्फॉर्मेशन और ख़राबी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ सीरियस मेजर है। तो नईम शाह ने मुझसे फ़ोन पे बात की, उनको मैंने स्पाइजीलिया दी और वो उन्होंने, नईम था या दूसरा था कोई, वह हमारे अजीज़ वाक़फ़ों में से कोई था जिसने किया, उन्होंने 200 में स्पाइजीलिया दी उसको और कुछ देर के बाद बिल्कुल आराम महसूस किया। तो डॉक्टर्स को जाके दिखाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी तकलीफ़ का असर बाकी नहीं। इसलिए स्पाइजीलिया इतना गहरा असर कर सकती है और एक मरीज़ को ज़िंदगी के ख़तरे से बचा सकती है अलग वजह से। ये पहचान इसकी उस मौके पर मैंने सिर्फ यही की थी कि ये पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन वगैरह में मुफीद है, समझे। पेरिकार्डियम की आप तारीफ़ करें डॉक्टर साहब, और अगर गलत हो तो आप मुझे ठीक करा देना। हुजूर, ये जो झिल्ली होती है दिल के गिर्द, गिर्द, हाँ, जिस तरह लंग्स के गिर्द झिल्ली होती है, वो हाँ, इसी तरह उसका उसको तो पेरिकार्डियम नहीं कहते। नहीं हुजूर, हाँ, उसको जो प्लूरा कहते हैं प्लूरा, ना, हाँ, हाँ, उसी किस्म की वो थिक झिल्ली जो है, ठीक है, वो इसके गिर्द, अगर उसकी सोजिश हो जाए तो फिर हुजूर ये होता है कि उसके अंदर फ्लूइड वगैरह की वजह से दबाव पड़ता है। ठीक है। तो ये तो ऑपरेशन करके बाद में निकालना पड़ता कभी कभी ताकि वो प्रेशर को रिलीज यही केस था उसका। जी हुजूर। उसका इतना लीक फिट का दबाव बढ़ गया था कि डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन ज़रूरी हो गया है, इसलिए उन्होंने डेट भी दे दी। और जब ये इलाज करा के डेट पे पहुंचा तो उन्होंने कहा तो कोई निशान भी नहीं उसका, नो फ्लूइड, नो साइंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो ये आर्निका ना स्पाइजीलिया में ख़ास खूबी है कि इसका पेरिकार्डाइटिस से ताल्लुक़ है। आपने कौन सी पोटेंसी में दी थी? 200 में। 200। ये भी 30 और से 200 बयान करता है, हम 30 to 200। गालिबन उसमें चॉइस उसने खुद किया था, मैंने कहा था 30 से 200 तक इस्तेमाल होती है। तो जिस दोस्त ने मुझसे पूछा था उसने उस मरीज़ को 200 पोटेंसी मेरे कहने पर नहीं दी, बल्कि ख़ुद ये चॉइस कर लिया कि 30 से 200 है तो 200 दे देते हैं, और 200 को उसने बहुत मुफीद देखा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है 30 से ये बेहतर हो, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। कार सिकनेस में क्या देते हैं? ट्रैवल सिकनेस, चार दवाइयों का जो नुस्खा है, हाँ वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। कवर कर देते हैं। पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम उसमें पेट्रोलियम भी है इसमें। इसने कार सिकनेस में दिया क्या हुआ है? हाँ, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक दवा है कोई? नहीं, और है कोई से मिलती जुलती, रूबीना या रूबीना है, रूब्रिक्स, हाँ। वो सिम्टम्स होते हैं जो लेबोरेटरी में दिए होते हैं। अच्छा, कहते हैं। उसको रूब्रिक्स कहते हैं, क्योंकि ये दवाई तो है ही नहीं मेरे इल्म में। दवाई दी। और देखे आर भी छोटा है, रूब्रिक्स तो रेपर्टरी का दूसरा नाम है। नहीं, लेबोरेटरी में जो सिम्टम्स लिखे हैं जिस और वो जो तमाम सिम्टम्स, उनको एक हर एक को रूब्रिक कहते हैं। फलां रूब्रिक एक ग्रुप सिम्टम्स का कोई एक सिम्टम जो है। रूब्रिक्स एक सिम्टम को कहते हैं, नहीं, रूब्रिक्स तो जमा सिम्टम्स का जो जत्था होता है इकट्ठा।
रूब्रिक्स जब होगी मुख्तलिफ रूब्रिक्स देख लें, वो कहते हैं कि उसके मुताबिक आगे दिया होगा। इसमें नौजिया देख लें, ये रूब्रिक है रेपर्टरी में, नौजिया के अंदर देख लें। फीचर, हर फीचर जो रेपर्टरी में है वो एक रूब्रिक कहलाता है। जी ये कहें ना फिर, यानी अंडर नौजिया विच इज ए रूब्रिक ऑफ रेपर्टरी, कंसल्ट द रूब्रिक ऑफ नौजिया एंड देन यू विल कम अक्रॉस मैनी पॉसिबल सुटेबल रेमेडीज, मेडिसिन्स, ये कहना चाहते थे। ठीक है, ये रूब्रिक का मुहावरा आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता है एलोपैथ्स? नहीं। बिल्कुल। इसमें रूब्रिक में जाने की जरूरत ही कोई नहीं, वो जो नुस्खा मैंने बताया था वो उनके अंदर ही रहता है। कार सिकनेस में काकुलस है और नक्सवामिका है, एपिकॉक है और दे काकुलस, पेट्रोलियम, आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी है। यही दवाओं का गुच्छा है। अकेले अकेले अगर मिल जाए कोई दवाई तो बहुत बेहतर है, अगर अकेले ना मिले तो चंद दवाएं मिलाकर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक केस आया था कुछ अर्सा पहले, अंगूठा क्रैक हो गया और उसकी दर्द या चोट जख्म जाती नहीं थी। क्या दिया था उनको हमने? अभी चंद दिन हुए, हमारे काम करने वालों में से कोई था, अंगूठे के मसला लेके आया था। हैं? याद नहीं रहा, वो पता नहीं, वो सुन रहे हो शायद तो उनको पता लग जाए। इसमें एक दवाई जो इन्होंने दी हुई है वो है क्रैक्ड थम्स। अगर क्रैक हो जाए थम्स, उसमें नाइट्रिक एसिड और पेट्रोलियम या मुकामी इस्तेमाल के लिए कैलेंडुला ऑइंटमेंट। अगर बीमारी के दौरान मरने वगैरह का खौफ हो तो उसके लिए तो एकोनाइट, आर्सेनिक वगैरह नुमाया हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें खौफ नहीं है मगर सिर्फ मायूसी है। उस मायूसी का इलाज सोराइनम है। अगर एक बीमार किसी बीमारी के दौरान मायूस हो चुका हो, हालांकि वैसे डरा ना हुआ हो या बेचैन भी ना हो, तो ना एकोनाइट काम आएगी ना आर्सेनिक काम आएगा, वहाँ सोराइनम देनी चाहिए। 200, 1000। ये जितने भी बीमारियों के मवाद से बने हुए बीमारियों के जहर से बनी हुई दवाएं हैं या मवाद जो निकलता है, इनको तबीयत चाहती है नहीं छोटी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने में, पर आमादे नहीं होती तबीयत। और पीप का बना हुआ नुस्खा और ये जो चेचक का जो गंध है उसका बना हुआ नुस्खा या कोड़ का के मवाद से बना हुआ नुस्खा, इसके ऊपर तबीयत वैसे ही मुतनफ़िर होती है लो पोटेंसी के इस्तेमाल के लिए। और सोराइनम भी ये कोड़ और जल्दी अमराज का गंदा मवाद है जिससे दवाई बनती है। इसलिए कैंट ने मसलन लिखा है कि वो तो नोसोर्स को 200 से कम इस्तेमाल ही नहीं करता, हमेशा 200 या ऊंचा, और मैंने भी हमेशा 200 या ऊंचा ही इस्तेमाल किया है। और चूंकि इस पोटेंशियो में फ़ायदा देते हैं इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं छोटी पोटेंसी में जाने की। तो सोराइनम भी यहाँ 200 या अबव। एक इलामत इसने दी हुई है जो ख़ास तौर पर इस शक्ल में कभी सामने नहीं आई कि अगर पेनिसिलिन का किसी को टीका लगे या गोलियां खिलाई जाएं और उसको असहाल लग जाएं पेनिसिलिन की रिएक्शन से, तो वैसे रिएक्शन ना हो मगर असहाल लग जाएं उसके नतीजे में, तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड अच्छी दवा है, बल्कि स्पेसिफिक है उसके लिए।
یہ عام طور پہ دیکھا گیا بہت سی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں جو ڈاکٹر، تو ہاں۔ ان کے بعد یہ اثار لگتے ہیں؟ جی جی۔ تو پھر یہ وہی ہے، اکثر سلفر بیس ہوتا ہے، جی اس لیے یہ بھی پینسلن بھی سلفر بیس کے اوپر ہوتی ہے، تو اس میں وہ ٹرائی کرنا چاہیے نائٹرک ایسڈ. ٹھیک دیٹ شوڈ بی فاؤنڈ اینٹیڈوٹل ٹو آل سچ کیسز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر. مجھے بھی یاد ہے کئیوں نے مجھے بتایا ہے کہ علاج کرایا تھا ایلوپیتھک کو انفیکشن ہو گئی تھی تو اسال نہیں پیچھا چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر نائٹرک ایسڈ مفید نہ ہو تو پھر سلفر مفید ہوگی اونچی طاقت میں. فیسٹیڈیسنیس، اس میں کیا کیا دوائیں سامنے آتی ہیں آپ کے ہیں؟ اور لکسوامی کا دونوں طرح ہی ہے، بے پرواہ بھی ہوتا ہے اور فیسٹیڈیس بھی، ہر طرح کا مزاج ہے اس میں. جو نمایاں ہیں اس میں ایک تو پلیٹینا ہے، پلیٹینا پیشنٹ بھی ہمیشہ فیسٹیڈیس ہوگا، اور آرسنک پیشنٹ فیسٹیڈیس ہوگا، ایناکارڈیم فیسٹیڈیس ہوگا. اس کے علاوہ اس نے ایلومینا بھی دیا ہوا ہے جو میرے تجربے میں نہیں ہے. میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، ایلومینا میں ہر قسم کے مریض ملتے ہیں. فاسفورس ٹھیک ہے، پلیٹینا بھی دیا ہوا اس نے. باقی یوں ہی بے وجہ نام کٹھے کیے ہیں. یہ دعائیں تو نمایاں طور پر فیسٹیڈیسنس کے لیے خاص ہیں. باقی دواؤں میں چونکہ دوسری علامتیں بھی ملتی ہیں، فیسٹیڈیس ہونا بھی شامل ہوگا لیکن دوسری بھی ملتی ہیں، اس لیے ان کو فیسٹیڈیس کے لیے اسپیسیفک کہنا جائز نہیں. ایک چیز بہت دلچسپ ہے، ان گرون ٹونیل. یہ تو مصیبت ہوتی ہے سب ڈاکٹروں وغیرہ کے لیے، پیچھے نہیں چھوڑتے اور کچھ عرصے کے بعد آپریشن کروانا پڑتا ہے. بہت تکلیف دہ بیماری ہے. اس کا ایک نسخہ اس نے تجویز کیا تھا جو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی چیز کارآمد ہوگی. اور وہ یہ ہے میگنیٹک پولس آسٹریلیس 200. آسٹریلیا کا میگنیٹک پول کا نسخہ. اب وہ آسٹریلیا کا میگنیٹک پول تو کوئی میٹر ہے ہی نہیں، اس ریجن میں کوئی انہوں نے کسی طریقے سے بنائی ہے دوائی جو اس کے میگنیٹک فیلڈ کو پریزرو کر لیتی ہے ایک الکوہل میں یا کسی چیز میں، اور وہ 200 طاقت میں 1-2 خوراکوں سے ہی ان گرو ٹونیلز پہ اثر پڑتا ہے. مجھے بھی تکلیف رہی ہے لمبے عرصے سے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو میں نے اپنے آپریشن کر کر کے خود ہی علاج کر لیا تھا. اور جو مفید چیزیں دیکھی ہیں، یہ جو یہاں سے ملتا ہے نا ایک پیسٹ، کیا ہوتی ہے وہ چیز کا نام، کارنز کے لیے ایک ٹیپ سے ملتی ہے جس کے اندر گول سا ایک چھلا لگا ہوتا ہے. وہ ناخنوں کا آپریشن کرنے کے بعد اوپر لگا دیتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اترتا تھا تو سافٹ ہو کر وہ بجائے سیدھا اندر گھسنے کے سختی سے وہ کنارے اس کے تھوڑے سے اٹھ جاتے تھے. تو یہ جمع آپریشن، اور وہ میں خود کرتا تھا کیونکہ ڈاکٹروں کے آپریشن جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک دم غلطی کر بیٹھا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں درد زیادہ ہو رہی ہے کہاں کم، تو وہ بلائنڈلی لگاتے ہیں، جب چیخ نکل جائے تب پتہ چلتا ہے. تو انسان اپنا آپریشن خود کر سکے تو سب سے اچھا ہے. صرف یہ کہ ڈس انفیکٹ کر لیں اس کو، اور وہ ایک چلنے میں پھر کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. جب ذرا دیر ہو گئی پھر آپریشن کر لیا. یہ جب سے میں نے کھایا ہے مجھے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. 2 مہینے ہو گئے، آپ نے بتایا تھا، یہ آپ ہی نے بتایا تھا مجھے، ہیں یہ کتاب میں وہی. یہ تو نہیں کہ الزام تو نہیں لگایا کہ آپ نے ایجاد کیا ہے. آپ تو اس طرح گھبرا گئے جس طرح ایک دفعہ ایک اسکول انسپیکٹر اس کلاس اردو کی کلاس کا
जायजा लेने के लिए गया, स्कूल जो देहात के स्कूल होते हैं उनमें, तो उसने इस क्लास पर किसी तालिब इल्म के सामने एक शेर पढ़ा, गालिब का शेर था, कि बताओ ये किसका शेर है। तो तालिब इल्म बेचारा थर थर कांपने लग गया, हाथ जोड़ दिए, मुझे कुछ नहीं कहे, मेरा नहीं है ये। बहुत ही डर गया, बड़ा सख्त कि नहीं मेरा नहीं। तो उस पर उसने ताज्जुब से उस्ताद की तरफ देखा, ये क्या हो रहा है। उसने कहा हुजूर माफ फरमाए, है इसी का, मुझे डर गया। तो उसी तरह रशीद साहब ने डायरेक्शन दिखाया है, कहते मेरा नहीं, जिसका मर्जी हो। किताब से पढ़ा था, जज़ाकल्लाह, ठीक है, मगर ये है अजीब सी चीज, मुझे इसकी केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही। ये पता करें बनाते किस तरह है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पोल की दवा 200 ताकत में इनग्रोइंग टोनेल्स को उल्टा देती है, ठीक कर देती है। हाँ? नहीं, कभी नहीं मैंने की, ना कभी ख्याल आया कि क्यूक्रम में भी ये चीज़ है। आपने इस्तेमाल करके देखी है? फिर वैसे मैंने पूछा, फिर ख्याल क्यों आया? शायद आपने की हो कभी। नहीं, ख्याल क्यों आया? क्यूक्रम में लिखा हुआ है, ट्यूक्रियम में। ट्यूक्रियम में, हाँ ट्यूक्रियम में लिखा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्यूक्रम समझ रहा था, क्यूक्रम में तो कोई जिक्र नहीं। अच्छा, ये आपको खास चीज आज बताई है, क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस, मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस। ये आम मिलती नहीं दवा, हमने खास तौर पर ऑर्डर दे के यहाँ से मंगवाई थी। 200 पोटेंसी, ये कहता है 3 डोजेज एवरी 12 आवर्स। मैंने तो 1-2 ही ली थी बस, और फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुस्तकिल तो मुराद नहीं होगी इसकी। शुरू में मेरा ख्याल धक्का देने के लिए, दवा बीमारी को, इलाज को पुश करने के लिए, इब्तदा में बाज़ दफ़ा 200 ताकत की दवाएं हर 24 घंटे में या 2 दफ़ा या 1 दफ़ा दे देते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद ख़त्म कर देने चाहिए। नोज ब्लीड में तो मिलीफोलियम और फास्फोरस वगैरह, नेट्रोम्योर, ये सब मुजरब दवाएं हैं, लेकिन ये कहता है फेरमफास को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी है अगर 30 या 200 ताकत में दी जाए तो। मैं चूँकि पहले फेरमफास को सिर्फ 6x में इस्तेमाल करता था, इसलिए इसका कामयाब तजर्बा कभी हुआ नहीं था। 30 में 30 नहीं 6 नोज ब्लीड के लिए आपको भी होता है? मुझे रात को बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने काली फास और फेरम फास खाई। ठीक है, फर्क पड़ा? बिल्कुल बंद हो गई थी इसमें। और तो फिर इसने खाम का 30 रखी हुई बेवजह। तो 6 एक्सिस थी 6x में भी मुफीद है जी। अगर इलामतें मिलती हों तो। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ फीट, वो आर्थराइटिस जो हड्डियों की मेल फॉर्मेशन की वजह से होता है। ऑस्टियो हड्डियों को कहते हैं ना, उसके असल में ब्लड की केमिस्ट्री से इतना ताल्लुक नहीं जितना बोन्स की मेल फॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन वगैरह से हो जाता है। उसमें कहता है अगर ये पाँव का हो, जो बहुत से मिलते हैं केसेस, पाँव में बाज़ दफ़ा एड़ी के नीचे कोई उठ जाती है हड्डी, थोड़ी सी मुस्तकिल एक मुसीबत बन जाती है। इसमें इसने लिखा हुआ है कि कंसिडर कोलोफाइलम 6 पोटेंसी। ख़ास तौर पर अगर ऐसी औरतों को ये पाँव की हड्डियों में तकलीफ़ हो जो बच्चों से फारिग हो चुकी हों और उधेड़ उम्र में दाखिल हो गई हों, उस वक्त जो उनकी तकलीफ़ है उसमें कोलोफाइलम 6 पोटेंसी की अगर कुछ अर्सा खिलाई जाए तो बहुत मुफीद होती है।
اگر نیلی رگوں میں درد ہو، کبھی آج تک کبھی کسی نے کمپلینٹ نہیں کی کہ صرف رگوں میں درد ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ سوائے اس کے کہ ویریکوز وینز کا گچھا جہاں ہے وہاں تو درد ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ذکر کہیں نہیں ملتا. لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر ویریکوز وینز کا ذکر نہیں کرتا، جسٹ پین ان دا وینز، پلسٹیلا 3x، فلورک ایسڈ 3x، ہیمامیلس 3x، یہ 3 دوائیں اس میں مفید ہیں. ہیمامیلس کا تو تعلق ہے بہت گہرا سیاہ خون کے اخراج وغیرہ سے، نیلے خون کے ساتھ، اور پلسٹیلا کا بھی ویریکوز وینز سے تعلق ہے، فلورک ایسڈ کا بھی. ٹھیک ہے، یہ کبھی نسخہ استعمال نہیں کیا، مگر یاد رکھو سلیم، آئندہ اگر کوئی ایسا کیس آئے ویریکوز وینز میں بھی ٹرائی کر کے دیکھیں گے درد دور کرنے کے لیے. حضور 3 کون سی ہیں؟ پلسٹیلا، ہیمامیلس، پلسٹیلا، فلورک ایسڈ اینڈ ہیمامیلس، بٹ اونلی ان 3x. ملا کے دینی چاہیے. اس نے ملا کے لکھا تو نہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ڈاکٹر جان کے نہیں لکھتے ملا کے دو، کیونکہ سمجھا جاتا ہے پھر کہ انہوں نے چھٹا مارنا شروع کر دیا ہے. تو بغیر کسی نوٹ کے تینوں نام اکٹھے دے دیے ہیں اس نے. ہو سکتا ہے الگ الگ بھی استعمال ہو سکتا، فائدہ ہوتا ہو، لیکن 3 ملا کے بھی دی جا سکتی ہے میرے خیال میں. جی نہیں، اس نے دیا ہوا 3x صرف اسپیسیفکلی، اس کے تجربے میں آئی ہوگی بات. میں نے 30 استعمال کر دی. ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہر ایک تو نہیں، مجھے شک ہے. ہر ایک تو نہیں چند. ہاں. آپریشن کے بعد جو ہوا بھر جاتی ہے معدے میں، پیٹ میں، سارے میں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اس کے لیے کسی کے ذہن میں ہے کیا نسخہ ہوگا؟ سب سے پہلے کاربو ویج ہے، بتایا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کالچیکم پوسٹ آپریٹو کے لیے تو نہیں، ویسے ہوتی ہے. اس میں میں دیکھوں کیا کیا دیتا ہے. یہ کاربو ویج دیتا ہے پہلے 30 اور 200، 6 ڈوزز، ہاف ٹو 2 آرلی. اب یہ نیا طریقہ ہے جو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا. یہ کہتا ہے کاربو ویج اگر دینی ہے تو ہاف آرلی، آدھے گھنٹے کے وقفے سے لے کر 2 گھنٹے کے وقفے تک. یہ 6 دفعہ، کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے؟ 6 ڈوزز، 6 دفعہ ہی، 6 دفعہ دے دیں. اور لائکوپوڈیم کی ٹپیکل علامت جو ہے اگر وہ پائی ہے تو وہی دیں گے کہ نیچے کی طرف دباؤ ہو اور ہوا کے اخراج سے ریلیف ملتا ہو، اس صورت میں لائکوپوڈیم ہے. ایک نئی دوا جو اس نے دی ہے جس کی طرف پہلے کبھی دھیان نہیں گیا، وہ فائٹولا کا 30 ہے. کہتا ہے اگر نہ ڈکار سے نہ ہوا خارج کرنے سے فائدہ پہنچے تو فائٹولا کا 30 اس خصوصی علامت کے لیے مفید ہے. میں یہ بھی کہتا ہے 6 ڈوزز اسی طرح فائٹولا کا کے. اور کہتا ہے پلسٹیلا بھی اسی طرح ٹرائی کرو، 30 پوٹینسی، 6 کنزیکٹیو ڈوزز 2 آرلی اور ہاف آرلی. بعض مریضاؤں کو یہ ورمیں ہو جاتی ہیں مینسس سے پہلے جسم میں، اور مینسس کے بعد ریلیو ہو جاتی ہیں. اس کی جو اسپیسیفک دوائی ہے وہ اپوسائنم ہے. ایکس ریز جو عام طور پر کیے جاتے ہیں یہاں مختلف
कैंसर की बीमारियों में और दूसरे भी बाज़ दफ़ा सिर्फ जायज़ा लेने के लिए भी एक्सरे किया जाता है। इन सब सूरतों में एक्सरे बाज़ दफ़ा बद असर पीछे छोड़ जाते हैं। अगर बेवजह एक्सरे करवाए जाएँ ज़्यादा तो उससे भी नुकसान होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो इंटेंस रेज के एक्सरेज हैं इलाज की खातिर, वो इर्द गिर्द की स्किन को जला देते हैं, काफ़ी सेहतमंद हिस्से को भी माऊफ कर देते हैं। उसका जो स्पेसिफिक इलाज और एंटीडोट है वो याद है किसी को? क्यों जी? रेडियो ब्रोमेटम भी है, मगर पहला इलाज स्पेसिफिक फास्फोरस है। और इसीलिए बोन कैंसर में भी और ब्रेन ट्यूमर में भी फास्फोरस चोटी की दवा है। आमतौर पर ये जो फ़िज़ा में रेडिएशन है और इस किस्म के इफ़ेक्ट्स होंगे, उनके नतीजे में ये रुझान बढ़ रहा है, तो फास्फोरस को नहीं भूलना चाहिए। ख़ुसूसियत से अगर मालूम हो कि एक्सरे में से गुजरा हुआ है मरीज़ काफ़ी, उसको फास्फोरस ज़रूर दें। ठीक है? और क्या लिखता है ये? लिखता है, हाँ, इसके नज़दीक फ्लोरिक एसिड बेहतर है। ये मेरे तजुर्बे में नहीं आया, लेकिन बैद नहीं, क्योंकि फ्लोरिक एसिड का हड्डियों की बनावट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर हड्डियों के जो ऊपर कवर है, जो चमकदार और ज़्यादा सख्त क्रस्ट होती है, वो फ्लोरिक एसिड से बनती है। उसके मजबूत करने के लिए हड्डी को फ्लोरिक एसिड ज़रूरी है। इसलिए जहाँ फ्लोरिक एसिड की कमी होगी वहाँ कार्टिलेजेस भी कमज़ोर और घुरने वाले हो जाते हैं, हड्डियों में नेक्रोसिस का ज़्यादा ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए ये कहता है कि फ्लोरिक एसिड रेडिएशन के बद असरात के लिए फास्फोरस से भी बेहतर है। ये भी सलीम नोट कर लो। ये कहते हैं रेडियो ब्रोमाइड या रेडियो ब्रोमेटम, मैं तो पढ़ा करता था पहले, वो भी नाम होता है, रेडियो ब्रोमेटम भी कहते हैं। रेडियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है इसने, 30 या 200 में भी बहुत मुफीद है। और कैडमियम इन 100 पोटेंसी और फास्फोरस भी 100 पोटेंसी में। ये ग्रिमर कोई डॉक्टर है, उसने तजवीज़ किया है। हमारे यहाँ तो आमतौर पर 100% मिलती ही नहीं, हम ये 30 से छलांग लगा के 200 में पहुँच जाते हैं। मगर मेरा ख्याल है 100 की ज़रूरत ही कोई नहीं हुई, नखरा है इस डॉक्टर का। 200 ठीक है, या 30 वो भी काम करेगी। और अगर लिवर के हिस्से में यहाँ अंदर टेंडरनेस महसूस हो, पेन नुमाया ना हो, मगर कच्चापन और हल्की सेंसिटिविटी हाथ लगाने से भी वो महसूस होती है, उसके लिए कौन सी अच्छी दवा है? मेरे तजुर्बे में तो चेलिडोनियम आई है। लिवर की इस किस्म की सेंसिटिविटी के लिए चेलिडोनियम इज़ एक्सीलेंट रेमेडी। इसकी बाद और अलामतें भी साथ होती हैं कि सुप्रास्कैपुला के नीचे पीछे पेन होती है, और वो चेलिडोनियम की लिवर की बीमारियों में अक्सर मिलती है। और इसका फुजला ऐसे मरीज़ का, वो बाज़ दफ़ा बीमार बच्चों के फुजले के रंग का कच्चा कच्चा जर्द हो जाता है, और बजाय इसके कि गहरा सफ़रा हो उसमें या बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, हल्का गंद, ऐसा पीला जो नज़र को बुरा लगता है, वो चेलिडोनियम की ख़ास अलामत है। और ये 3 अलामतें इकट्ठी हो जाएं तो चेलिडोनियम ही दवा है। ये फिर उसके लिए भी मुफीद है, पित्ते की पथरियों में भी। और पित्ते की पथरियों में अगर लाइकोपोडियम के साथ दी जाए तो ज़्यादा मुफीद है। अभी कुछ अर्सा हुआ, एक ऑपरेशन हुआ था यहाँ पित्ते का, मैंने सजेस्ट किया था कि वो पित्ते का केस लगता है। उनको दवाई मैंने दे दी थी, लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम वगैरह। सर्जन ने बाद में बताया कि ऑपरेशन तो मैंने कर दिया, लेकिन वो आप ही पिघल रही थी, पथरियाँ घुलनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह यह है कि बाइल
अगर सेहतमंद हो, उसकी कंसिस्टेंसी दुरुस्त हो, जितना उसमें लिक्विड वगैरह की प्रोपोर्शन है वो ठीक हो, तो वो खुद ही पथरियों को डिजॉल्व कर देता है। और इस किस्म का बाइल प्रोड्यूस हो रहा तो पथरियाँ होती नहीं। पथरियाँ होने का और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि बाइल गाढ़ा हो जाता है और अपने मादे को थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट कर देता है उसकी गॉल ब्लैडर की झिल्ली के ऊपर। वो छोटे छोटे ज़र्रे आहिस्ता आहिस्ता जुड़कर फिर वो सख्त बन जाते हैं, फिर एक न्यूक्लियस सा बन जाता है। और अगर ये लंबा अरसा इस तरह पाले जाएं तो पत्थर इसकी गॉल ब्लैडर का कैंसर खसूसियत से औरतों में पैदा हो सकता है इसके नतीजे में। इसलिए लंबा अरसा इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर गॉल ब्लैडर में पथरियाँ मौजूद हों और वैसे सेहत की अलामतें ये ना बताएं कि कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो इस नुस्खे के साथ लाइकोपोडियम 200, चेलिडोनियम 30, एक जर्मन दवा है जिसका नाम है ऑस्पाफेल। वो हर्बल दवा है, होम्योपैथिक गालबन नहीं है, हर्बल है। उसकी 2 टिक्कियाँ दिन में 3 दफ़ा अगर चबाई जाएं तो काफ़ी बदमज़ा चीज़ है, लेकिन मैंने चबा के देखा है, काबिल बर्दाश्त है। बहरहाल चबा के पानी के साथ बाद में पी लें उसको। और वो कहते हैं कि इसको पूरा नहीं निगलना, चबा के ही नहीं खाना है। इससे मुझे ख्याल आया था कि हो सकता है कि होम्योपैथिक इफेक्ट भी उसका डेवलप होता हो। ये कम्बिनेशन अक्सर पथरियों में मैंने मुफीद देखा है। ऑस्पाफेल टुगेदर विद चेलिडोनियम 30, लाइकोपोडियम 200। OSPAFEL, ऑस्पाफेल। ये चेलिडोनियम को तजवीज़ करता है मदर टिंचर ड्रॉप डोजेज में, फ्यू ड्रॉप डोजेज में, लेकिन मैं तो 30 में ही देता हूँ। 30 में ही इसको मैंने काम करते हुए देखा है। ये कहते हैं लिवर में अगर साथ चेलिडोनियम के अलावा कार्सिनोसिन दे दी जाए तो ये मेलिग्नेंसी से बचाती है, यानी कैंसर के ख़तरे से बचाती है कार्सिनोसिन। इसलिए अगर पथरी से कैंसर का ख़तरा है, जैसा कि है, तो क्यों ना कार्सिनोसिन मुस्तकिलन चेलिडोनियम वाले नुस्खे में शामिल कर दी जाए। लेकिन एक सिर्फ देखना होगा कि कार्सिनोसिन रेपिटेशन को बर्दाश्त करती है कि नहीं। अगर रेपिटेशन कम होनी चाहिए तो नुस्खे में शामिल सिर्फ इस तरह हो कि रात को सोने से पहले कार्सिनोसिन की एक खुराक और दिन में 3 दफ़ा बाकी नुस्खा जारी रखें। ये कुछ बेतुकी बात एक और शुरू कर दी है इसने बीच में, इसलिए मैं ज़रा देर लगा। ये कहता है अगर इन्फ्लुएंजा की वजह से ये डेवलप हुआ हो तो फिर जेलसीमियम 200 को नहीं भूलना चाहिए, वो रिपीटेड डोजेज में मुफीद है। और अगर टेंडरनेस जिगर की बाईं तरफ ज़्यादा हो तो उसमें कार्डुस मेरियानस मदर टिंचर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। वो तो मैं वैसे ही रूटीन में देता हूँ हर जिगर के नुस्खे, बेहतरीन दवा है। चेलिडोनियम को भी मदर टिंचर में ये कहता है। और
اور یہ بھی مان رہا ہے کہ چیریڈونیم از مور آفن انڈیکیٹڈ. میں نے بھی بتایا نا میرے نزدیک تو یہ اسپیسیفک بن گئی ہے ان علامتوں میں. 30 میں دی جائے تو خدا کے فضل سے بہت فائدہ ہے. آرم میٹ کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. بچوں کے سمپٹمز ہوتے ہیں جو عذاب بعض نیچے نہیں اترتے ہوئے، اس میں آرم میٹ مفید ہے. ویکنیس اینڈ ریسٹلیسنیس، یہ جو ہی آسنے کا عام بات ہے، وہ بڑا اس نے کوئی تیر مارا ہوا اپنی طرف سے. باقی سب خاص کام کی چیزیں ہیں. بچوں کے معاملے میں یہ کہتا ہے بعض تھراپیوٹک ہنٹس ہیں جو آپ کو مفید دکھائی دیں گے. ایک ہے موٹاپا غیر معمولی، اس کا میں پہلے ذکر نہیں کر چکا. بووسٹا تمہیں لکھوایا ہوا میں نے خود. اچھا میں سمجھا تھا میں پڑھ چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں. بووسٹا ایک دوا ہے 200 میں. عام طور پر جو موٹاپے کے لیے عورتیں اسٹرکٹ ڈائٹنگ کرتی ہیں، خصوصی سے خواتین، وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ اعصابی بریک ڈاؤن ہو جائے تو اس کو پھر ریہیبلیٹیٹ کرنا بہت مشکل ہے. نروس ریک بن جاتی ہیں ایسی عورتیں، اور فائدہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ موٹاپے کے ساتھ وہ زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہیں بنسبت لٹکی ہوئی جلد کے. وہ بیگی اور ساری جسم میں نہ جان نہ طاقت نہ کوئی ٹینسائل اسٹرینگتھ رہ جاتی ہے. اس لیے حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. اگر ڈائٹنگ کے بعد ایسا ہو تو پھر تو غیر معمولی بات نہیں، کہ دماغ جواب ہی دے چکا ہوتا ہے. لیکن ڈائٹنگ سے پہلے اچھا بھلا دماغ ہو اور آدمی یہ حرکت کرے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اس لیے ڈائٹنگ میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا نسخہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تفصیل سے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو. ہر چیز کھاؤ اور پیو، کسی چیز میں بھی زیادتی نہ کرو. اور کھانے کے لیے زیادتی کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جب کوئی چیز کھانے کی اشتہا ہو، یعنی خواہش ہو، بھوک ہو، تو اس کے مٹنے سے ذرا پہلے اس کو چھوڑ دیا کرو. یعنی ابھی خواہش کچھ باقی ہے اور کھانا چھوڑ دو. یہ بہت ہی حیرت انگیز سائنٹیفک مشورہ ہے، کیونکہ ہمیں جب شوگر کی مثلاً کمی محسوس ہوتی ہے، جسم کے اندر کوئی ضرورت پڑتی ہے توانائی کی، تو بھوک لگتی ہے، اور اس سے کئی فیکٹرز عمل حرکت میں آ جاتے ہیں. سیکریشنز ہوتی ہیں جو مختلف سگنلز دیتی ہیں، اور معدے کے جو گلینڈز ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں، ایکسٹرا فلوئڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہونے کے باوجود ابھی یہ سگنل نہیں جاتا کہ آپ بس کرو، کیونکہ یہ کمپلیکس سارا فینومینا مکمل ہونے میں چند منٹ لگتے ہیں. تو آخر کے چند منٹ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور وہی ہے جو ایکسٹرا فیٹ پیدا کرے گا اور باڈی ویٹ کو ڈسپروپورشنیٹ کر دیتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ابھی بھوک ہو تو بھوک رکھ کر کھانا چھوڑا کرو، اس کو میں نے دیکھا ہے بہت ہی مفید ہے اس لحاظ سے بھی کہ اگر آپ
जो महसूस कर रहे हैं भूख उसके मुताबिक खाना छोड़ेंगे, बेशक ज्यादती ना करें, कुछ देर के बाद पेट भारी हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सिग्नल्स जो हैं वो पहुंच चुके होंगे, फिर महसूस होगा कि जितनी आपको शुगर की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मिल गई है, और उससे बोझलपन और कसल तबीयत में वाक़ हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भूख रख के छोड़ दें तो चंद मिनट के बाद भूख का एहसास बिल्कुल मिट जाता है और आदमी महसूस करता है कि मैं ठीक ठाक हूँ, कोई तबीयत पे बोझ नहीं पड़ता। इसलिए बेस्ट डाइटिंग ये है, हर किस्म की ग़िज़ा में से हिस्सा लें और फैट्स भी बंद ना करें टोटली, कुछ कम कर दें मुनासिब, लेकिन अपना जो रोज़मर्रा का ग़िज़ा का तवाज़ुन है उसे बरकरार रखें। जहाँ तक दवाओं का ताल्लुक़ है, दवाओं में अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मोटा हो तो उसके लिए ये बोविस्टा 200 बेहतरीन दवा है। कॉन्स्टिट्यूशनली से मुराद ये है कि जिनके अंदर रुझान है, पैदाइशी बच्चों में बाज़ मोटे फूले हुए बच्चे बनते हैं और रुकते नहीं। इसलिए बाज़ यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने नोटिस किया इस बात को कि उनके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा ज़रूर है जो इस टाइप के हैं, यूँ उनको बोविस्टा दें 200 में, ठीक है, और लंबे अरसे तक जारी रखें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वक्त लेते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि 3 से 6 महीने के अंदर नुमायां तौर पर फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। और आम मोटापे का इलाज जो मेरे तजर्बे में आया है वो है फाइटोलाका 30 बेरी, हाँ फाइटोलाका, मैं खाली फाइटोलाका कह देता हूँ, तभी सलीम ने कहीं मोटे कर दिए हैं इस तरह। फाइटोलाका से अगर बेरी ना हो तो मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ास हालात में, महज यूँ ही नहीं, उस मोटापे का नुकसान कोई नहीं, क्योंकि वो सेहत की निशानी है। मैं उसकी तफसील बाद में बताता हूँ। फाइटोलाका बेरी कोलेस्ट्रिनम 30 में मिलाकर दिन में 2-3 दफ़ा शुरू कराएं और फिर मेंटेनेंस डोज के तौर पर 1 दफ़ा रोज़ाना कर दें। 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ये बाज़ दफ़ा नुमायां असर ज़ाहिर होता है। बाज़ मरीज़ों ने शिकायत की कि हमारी भूख बढ़ गई है। मैंने कहा कि भूख बढ़ गई है तो बेशक खाओ, लेकिन वही भूख रख कर छोड़ो, और उसके बावजूद ज़्यादा खाना करने के बावजूद उनका जिस्म रफ्ता रफ्ता कम होना शुरू हो गया। कोई ड्रेस्टिक चेंज नहीं आया कि आज खाई और कल सूख गए, लेकिन फ़र्क पड़ता है नुमायां तौर पे, और इसका कोई नुकसान नहीं है, दिल पे कोई बुरा असर नहीं। फ्यूकस जो दवा मिलती है आपको लिखी हुई, वो जिस्म घटाने में सबसे ज़्यादा तेज़ दवा है, उससे ज़्यादा ज़ूद असर दवा और कोई मैंने नहीं देखी। लेकिन साथ ही दिल भी घटाती है, वज़न भी घटाती है, दिल भी घटाती है, और अगर एहतियात ना की जाए तो सीरियस दिल का हमला हो सकता है। इसलिए फ्यूकस को तो 10 गज के पोल से भी टच ना करें, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे पतला होने की जिसके नतीजे में मरीज़ मुस्तकिल दिल का मरीज़ बन जाए या वाक़यातन हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए मैं तो नहीं कभी उसको हाथ लगाता, तजुर्बा कर चुका हूँ अपने ऊपर भी, और क्योंकि बाज़ मरीज़ों ने मुझे शिकायत की थी कि हमारे दिल पे असर पड़ा है, इसलिए मैंने देखा। मेरा ख्याल किताबों में तो नहीं लिखा हुआ शायद फ्यूकस का, मैंने ज़ाती तजुर्बा मुख्तलिफ जगह करके देखा। फिर जब मैंने खुद खाई कुछ अर्सा, तो एक तो लॉस ऑफ वेट बड़ा नुमाया था, दूसरे दिल के अंदर पहले कमज़ोरी और कच्चा कच्चापन महसूस होने लगा, और वो अजीब सा था, पहले कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई थी। और फिर वो अचानक बाद दिल डूबने लगता था। जब मैंने इस अपने ज़ाती तजर्बे को मरीज़ों के बयान से टैली करके देखा तो सबका यही था, एक ही तरीका है फ्यूकस की बद असर का। इसलिए इससे परहेज़ रखें, फाइटोलाका और कोलेस्ट्रिनम 30 में रूटीन के तौर पर, और बोविस्टा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मरीज़ हो, लेकिन अलावा अजीम भी बोविस्टा
मददगार के तौर पर आम मोटों को दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन साथ डाइटिंग नहीं करनी। ये कहता है बाज़ बच्चे बहुत मोहब्बत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं, तो उनका भी इलाज होना चाहिए। इनके यहाँ तो मुसीबत है ना, तो बच्चा प्यार करने वाला हो फिर उसको प्यार भी दो। एक्सेप्शंस तो हैं, बाज़ यहाँ भी बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन अक्सर ये बच्चों का जो पैशन है उसको रिटर्न करना ज़रा मुश्किल समझते हैं अपने लिए। मिजाज में खुला जवाबी इजहार शामिल नहीं है, इसलिए इसको भी उन्होंने बीमारी बना के ट्रीट किया हुआ है। कहते हैं पर्स्टिला, फास्फोरस, कैलकेरिया फॉस और ये सारी चीज़ें बच्चे में जो मोहब्बत की ख्वाहिश है उसमें कमी पैदा कर देगी। और वो बच्चा जो हर वक्त गंदा ही नज़र आए उसके लिए कौन कौन सी, सल्फर भी, सोराइनम भी और ग्रेफाइट्स भी, हेपसल्फ भी, ठीक है। क्या नहीं, कोई सुना नहीं, लेकिन ये हरगिज बैद नहीं कि गंदे चेहरे वाले को नेट्रिम्यूर फायदा दे दे। गंदा चेहरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है नेट्रिम्यूर की, लेकिन नेट्रिम्यूर की कॉन्स्टिट्यूशनल इलामात में चेहरे का गंदा होना शामिल नहीं है। चेहरे का गंदा होने से अजीब काबिले बयान ऐसी बात नहीं है जो आसानी से बयान हो सके, क्योंकि बाद लोग मुंह धो के तैयार होके भी आए तो चेहरा गंदा गंदा लगता है। ये उस कैफियत को जाहिर कर रहे हैं। ये सल्फर, सोराइनम, ग्रेफाइट्स, हेपसल्फ, उनमें ये अलामतें मिलती हैं। इसने सिर्फ सल्फर दी हुई है। अच्छा, डिसेंट्री हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, पता नहीं किस किस्म की पेजिश का गंद इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, मगर एक दवाई का नाम भी डिसेंट्री है। इसका मतलब है कि पेचिश के गंद से वो दवाई तैयार करते हैं, लेकिन 200 पोटेंसी का तो मतलब ये है कि उसमें पेचिश का ख्वाब ख्याल भी बाकी नहीं रहा सिवाय उस याद के निज़ाम के जो अल्लाह ताला ने कायम फरमाया हुआ है। सॉरी, इसलिए इसको हरज नहीं है, मगर ये है बनती कहाँ मुझे तो पता ही नहीं। पता कराएं डॉक्टर साहब। डिसेंट्री 200, ये डिसेंट्री 200 तजवीज़ करता है वो मरीज़ जिनको क्रॉनिक पेचिश हो, उनकी असाबी तकलीफ़ें, उनकी जहनी तकलीफ़ें, उनके मिजाज पर जो पेचिश असरअंदाज होती है, वैसा मिजाज आपको कहीं दिखाई दे तो उसको आप डिसेंट्री से ट्रीट करें। लेकिन पेचिश के लिए भी डिसेंट्री 200 इस्तेमाल की जा सकती है, क्रॉनिक हो जाए। लेकिन ये पता नहीं कहाँ की पेचिश ली है उन्होंने, पाकिस्तान की है, इंडिया की है, हैं? नहीं, यहाँ की होगी लोकल। इनकी पेचिश की किस्में और हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पेचिश हर जगह हर मुल्क में बराबर एक ही जैसी हो। होम सिकनेस के लिए कैप्सिकम 200, मैं कहा काफले में ले जाओ साथ हमेशा, ये बना के ना इसकी शीशियाँ हमारे सफ़र के काफले में रख लेना करना साथ। होम सिकनेस के लिए कैप्सिकम 200, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, तजुर्बा करके देखेंगे। ये ना हो कि तुम ज़्यादा खा लो वापस आने को दिल ही ना जाए। अच्छी मुसीबत पड़े है। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वो क्लोरोफॉर्म के असर से हो तो उसके लिए फास्फोरस है, और आम तौर पर फेरम मैट बहुत अच्छी है। अगर किसी वजह से भी हो, क्लोरोफॉर्म की वजह से ना हो,
تو فیرم میٹیلیکم، یہ اس کی پوٹینسی دیکھتے ہیں کون سی تجویز کرتا ہے یہ. ہاں یہ کہتا ہے کہ فیرم میٹیلیکم ان 30 پوٹینسی از نیئرلی آلویز دا ریمیڈی. بڑا اس پہ اس کو مان ہے، یہ کہنا چاہیے گویا کہ یقین ہے کہ ضرور کام کرتی ہے. باقی کہتے ہیں وقت ہو گیا پھر صحیح انشاءاللہ. کیوں جی؟ کل بھی ہوگی کلاس انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اچھی دلچسپ لیبورٹری بن گئی ہے اس کی.